As we are a little advanced in time, I do not want to take a long time, but let me straight come to one passage from the scripture to begin with, the book of Romans chapter 13 and verse 1. मेरे प्यारों, हमारे पास में समय कम है, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। सीधे तौर पर प्रभु के वचन की ओर मैं आपका ध्यान को लेकर के आना चाहता हूं। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय और उसका पहला पद। Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय उसका पहला पद, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। We live in a country which has a very strong constitution. मेरे प्यारों, हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां का संविधान बहुत ही मजबूत है। Personally, everybody may not be very comfortable with every provisions of the constitution and the government. हो सकता है कि संविधान में बताए गए हर एक नियमों से हर एक व्यक्ति हो सकता है कि उतना ज्यादा सहज महसूस ना करते हो। But the Bible so clearly says, let every soul be subject to the governing authorities, for all the authorities are ordained by God. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, चाहे कोई भी बातें क्यों ना हो, कोई भी अधिकारियों के अधीन में रहना हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। We need not have a political alliance to be patriotic. Say it again, brother. We need not have a political alliance to be patriotic. देखिए, हमारे पास में कोई राजनीतिक संबंध होना जरूरी नहीं है कि हम कोई नेता बने। But we are patriotic. We respect our country. We honor our country. We honor our leaders, and we are subject to the law that has been given to us. और हम वाकई में देखा जाए तो अपने देश को प्रेम करने वाले हैं, हमारे देश के भलाई को चाहते हैं, और हम उसके एक जिम्मेदारी के तौर पर हैं। If we are placed in this country, probably which is a little different than many other countries, we need to believe it is God who has chosen us to be in this country. मेरे प्यारों, हमारा देश का संविधान और नियम बहुत ही बाकी देशों से अलग है, और परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम इस देश में रहें। So God expects us to serve His purpose, being subject to the authorities that God has placed above us. परमेश्वर चाहता है कि हम अधिकारियों के अधीन होते हुए, उन नियमों का पालन करते हुए परमेश्वर की योजना को हम इस देश में रहते हुए पूरा करने पाएं। One of the most commonly used term when it comes to Christians is conversion. और एक जो शब्द जो आता है मसीहों के लिए, और वो है धर्मांतरण किया जाना। When we learn the Bible, it is not we who convert, it is God who converts a person. एक बात हमें समझना जरूरी है कि ये जो धर्मांतरण या बदला जाना, ये मनुष्य नहीं करता है, परंतु परमेश्वर स्वयं करते हैं। We are only the proclaimers, proclaiming the message that has been given to us. हम केवल प्रभु के द्वारा दिए गए सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाते हैं। Our message is not proclaiming a religion. हमारा कार्य एक धर्म का प्रचार करना नहीं है। Unfortunately, many who listen or hear also consider what we preach as a religion, but we are of the faith and the way and not of the religion. मेरे प्यारों, कई लोग भले ही हमें ऐसा है मानते हो कि हम धर्म के प्रचार करते हैं, परंतु हम एक सच्चे मार्ग के प्रचार करते हैं, हम एक विश्वास का प्रचार करते हैं। Unless God converts and God changes a person, no man can achieve that. It is God's business. यदि परमेश्वर किसी इंसान के जीवन को ना बदले, ये संभव नहीं हो सकता है। ये परमेश्वर का कार्य है, किसी मनुष्य का कार्य नहीं है। Yet, as we have been hearing from two of the eminent advocates, we know that the Constitution and the law has a lot of restrictions and provisions imposed upon us. मेरे प्यारों, हम जैसे हमारे जो आदरणीय वकीलों से सुन रहे थे कि जितने भी नियम हैं, उनमें कुछ आजादी है और कुछ बाधाएं भी हैं, कुछ रुकावटें भी हैं। Now, does it stop us from doing our business? Does it stop us from proclaiming the gospel? क्या ये हमें
परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार कार्य को रोकती है? No, it does not stop us. It only gives us the confidence, subject that we submit ourselves to the law that has been given to us. मेरे प्यारो, जितने भी नियम बताए गए हैं वो हमारे प्रचार कार्य में रुकावटें नहीं ला सकती हैं, बल्कि हमें उन कानूनों के, उन अधिकारियों के अधीनता में रह करके इस कार्य को करना काफी जरूरी है। So before I go into the body of this message, what I would like to say is, don't be fearful, but let us keep going forward as far as possible and to keep and abide by the law that has been given to us. मेरे प्यारो, मैं यही बताना चाहता हूं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें आगे की ओर बढ़ना है, लेकिन एक बात जो हमें ख्याल रखना वो ये है कि हम उन अधिकारियों के, उन नियमों की अधीनता में रहते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। Apart from Apostle Paul in Romans chapter 13, Apostle Peter also talks about the similar things in 1 Peter chapter 2 verse 13 to 17. मेरे प्यारो, ना केवल पौलुस परंतु पतरस भी अपने पत्रियों में बताता है इन्हीं बातों को कि कैसे हमें एक अधिकारियों की अधीनता में इस कार्य को आगे बढ़ाना है। And Peter concludes in verse 17 by saying, honor all people, love the brotherhood, fear God, honor the king. Can you please tell the verse with the chapter? 1 Peter chapter 2 and verse 17. पहला पतरस पहला अध्याय और उसका 17 पद, उसमें ऐसा लिखा गया है, honor all people, chapter 1, love the brotherhood. chapter 1, chapter 2. Okay. 1 Peter chapter 2. पहला पतरस दूसरा अध्याय और उसके 17 पद में कुछ ऐसा लिखा गया है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। So we do all these things. We are bound to do these things. और हम ये सभी कार्य करते हैं और हमें ऐसा करना भी है। We honor all people. हम सभी लोगों का आदर करते हैं। We don't discriminate based on the religions. हम लोगों के धर्म के आधार पर उनको विभाजन नहीं करते हैं। We love our brotherhood. हम अपने भाइयों का आदर करते हैं। We fear God and our primary fear is unto God. और हमारा मुख्य रूप से परमेश्वर के प्रति हमारा डर है। And we honor our rulers, we honor our kings. और हमारे देश के राजाओं का, हमारे उस अधिकारियों के अधीनता में भी रहते हैं, उनका सम्मान करते हैं। For we believe it is God who has placed them with the purpose, with the reason. और हम इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर ने ही उनको वो अधिकार दिया है। So my word to you, my dear brethren, put God first and serve under submission to God's ordinances. मेरे प्यारो, मेरा कहने का मतलब यह है, परमेश्वर का आदर करो और परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए उन अधिकारियों को भी सम्मान करते हुए अधीनता में जीवन को बिताओ। Let me title this brief message as serving in submission. और मैं इस संदेश को मैं इस रीति से बता सकता हूं, अधीनता में रहते हुए प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ना। The first factor, every authority is appointed by God. पहली बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि सभी अधिकार परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं। That is what the Bible very clearly says. यही बात परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता है। Whatever is the government, whatever is the party, whatever is the political system, the Bible says the rulers are allowed by God, appointed by God. मेरे प्यारो, इस बात को हमें याद रखना है, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, चाहे किसी भी वर्ग के क्यों ना हो, लेकिन वो सारे अधिकार परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं। God is sovereign and no power can rise unless God permits. मेरे प्यारो, परमेश्वर अधिकार चलाता है और जब तक परमेश्वर अधिकार ना दे, कोई भी शासन नहीं कर सकता। It is God who has the power to bring someone to power and to overthrow someone's power. मेरे प्यारो, परमेश्वर के पास में अधिकार है कि किसी को वो गद्दी पर बैठाए या किसी को गद्दी से उतार दे। So if we believe it is God who has brought the power or appointed the rulers, nothing stops us from being subject to taking God in the first place. मेरे प्यारो, जब ये विचार हमारे दिल में आती है कि जो भी अधिकार है वो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है, तो हम उसकी अधीनता में जीने में हमें किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होगी।
Second factor we see from this verse is everyone must be subject to God appointed authorities. और दूसरी बात जो हमें समझ में आता है मेरे प्यारों की परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए अधिकारियों के अधीनता में जीवन को बिताना। Christians are not called to be a rebellious people. मसीह लोगों को विरोध करने के लिए या बगावत करने के लिए नहीं बुलाया गया है। The second point I was discussing was everyone must be subject to the God appointed authorities. मेरे प्यारो दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था कि परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए उन अधिकारियों के अधीनता में जीवन को बिताना काफी जरूरी है। What God allows need not satisfy our logics always, but in the wisdom of God, it is perfect. मेरे प्यारो परमेश्वर के द्वारा उसके योजना के द्वारा ठहराए गए के अधिकारियों के विषय में कई बार हमें समझ में नहीं आता है या उसको हम सही सहज रूप से नहीं ले पाते हैं। Our submission to God must be manifested in our social life. मेरे प्यारो जब हम उस विषय में अधीनता में जीवन को बिताते हैं तो वो हमारे सामाजिक बर्ताव में भी प्रभाव लाता है। So we are bound to show our subjection and submission in obedience to God's word. परमेश्वर के वचन के आधार पर जो परमेश्वर ने ठहराया है उसके अधीनता में जीवन बिताते हुए समाज में भी उसको प्रदर्शित करना काफी जरूरी है। The third factor I want to mention here is no man can resist the ordinance of God. तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए उस विषय को कोई भी नकार नहीं सकता है। This Paul mentions in chapter 13 and verse 2, Romans 13:2. रोमी की पत्री उसका 13 अध्याय उसके 2 में इस विषय को हम पढ़ते हैं। We cannot oppose what God has appointed. जो परमेश्वर ने ठहराया है उसके विरोध में हम कुछ नहीं करना है। So every situation may not be very pleasant and joyous, but we cannot oppose because it is God who has appointed and allowed certain things in our lives. इसका मतलब यह होता है मेरे प्यारों कि हो सकता है कि वो जो कुछ ऐसे नियमों को या ऐसी कार्यों को करते हैं जो हमें सहज महसूस ना करे, लेकिन क्योंकि ये परमेश्वर ने ठहराया है, परमेश्वर चाहता है कि हम कभी विरोध ना करें। And there Paul says resisting the system that God has ordained amounts to resisting God himself. मेरे प्यारों यदि हम ऐसा करते हैं, हम उनका विरोध करते हैं, तो जैसे पतरस कहता है हम परमेश्वर का ही विरोध करते हैं। The fourth factor I want to share here, चौथी बात जो मैं आपके सम्मुख में लाना चाहता हूं, if you turn to 1 Timothy chapter 2 and verse 2, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, there we see a peaceful and quiet life is our earnest desire. वर्स चैप्टर 1 वर्स Chapter 1 Timothy chapter 2 and verse 2. पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 2 पद में ऐसा लिखा गया है कि एक विश्राम और चैन के साथ जीने का एक आशा के बारे में। He says we need to pray and we need to have a peaceful and quiet life. कहता है यहाँ पर पौलुस लिखता है राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ रहे। It is God's will. और यही परमेश्वर की इच्छा है। The Lord Jesus has given his peace unto us. प्रभु यीशु मसीह ने हमें शांति दिया है। And we need that peace to rule our hearts irrespective of the physical situations that we pass through in this world. मेरे प्यारो वो शांति हमारे हृदयों में वास करने पाए और ये तब होता है जब हम उसको जो प्रधानों को उन तमाम लोगों के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। Apostle Paul further says when he writes to the Philippians in chapter 4 and verse 7, मेरे प्यारो जो फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 7 में पौलुस लिखता है, when we bring our problems before God or pray unto God, the peace that passeth all understanding will rule our hearts and minds in Christ Jesus. पौलुस कहता है कि जब हम किसी मुश्किलों के दौर से गुजरते हैं और उन विषयों को हम प्रभु के सम्मुख में लेकर के आते हैं, तो परमेश्वर की शांति जो हमारे जो हृदय से विचारों में सुरक्षित रखती है, वास करती है। It is true that we are facing problems of various kinds and pressures in this country, especially in the mission forefront in these days.
मेरे प्यारों, हमें मालूम है कि हम इन दिनों में कई प्रकार के मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, कई प्रकार के कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। But if we pray and bring it to the Lord, He is able to give us the peace that passeth all understanding. लेकिन यदि हम इन बातों को परमेश्वर के सम्मुख में लेकर के आते हैं, तो वो हमारे हृदय में उस शांति को वास करने के लिए, उसको महसूस करने के लिए सहायता करता है। These problems are not going to stop us from advancing in the missions that God has given to us, but prayerfully, peacefully advance forward, and our God is with us. मेरे प्यारो, ये तमाम चीजें हमें प्रभु के कामों में आगे बढ़ने के लिए जो रोक नहीं सकती है, लेकिन उन प्रार्थना के साथ में, उन अधिकारियों के अधीनता के साथ में आगे बढ़ना जरूरी है। Let me come to a fifth aspect that I want to share here. पांचवी बात जो मैं आपके सम्मुख में लेकर के आना चाहता हूं, Availing our legitimate right is our privilege. मेरे प्यारो, जो भी हमारे लिए जो दिया गया प्रावधान है, वो हमारे लिए एक हमारी राइट्स है, हमारे अधिकार हैं। If you look into Acts chapter 25 verse 10 and 11, where Apostle Paul talks about his citizenship and its privileges. मेरे प्यारो, हम जब प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं, तो पौलुस अपने अधिकार के विषय में कहता है। He says about his citizenship, and he has certain privileges that he can enjoy in the land, and he fights for that. He claims that. और वो अपने विषय में कहता है कि उसे जो नागरिकता मिली है और उससे जुड़ी हुई कितने अधिकार उसे प्राप्त हुए हैं, उसके विषय में पौलुस बताता है। And we were hearing from these two advocates about the privileges that we have under the Constitution, and we have all the liberty and right to avail the privileges given to us constitutionally. मेरे प्यारो, हम इन हमारे जो आदरणीय वकीलों से सुन रहे थे, जो भी अधिकार जो हमारे संविधान के आधार पर हमें दिया गया है, और उससे जुड़ी हुई बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे देश के इस भारत देश में रहते हुए हमें मिलते हैं। Legal defense is not a retaliation, but it is a citizen's right under submission. मेरे प्यारो, ये जितने भी अधिकार जो हमें दिए गए हैं, वो हमारे लिए एक सराहनीय एक अधिकार है, एक ताकत है वो हमारे लिए। इसके विरोध में नहीं जाना है। For some reasons, we are probably a misunderstood group of people in this society. हम कई बार अपने समाज में लोगों की नजर में एक गलत तरीके से हम दिखाई देते हैं। We don't convert, but people say we are the converters. लोगों को हम बदलते नहीं हैं, धर्मांतरण नहीं करते हैं, परंतु लोग हमें इसी दृष्टिकोण से देखते हैं। We don't put force upon anyone, but people misunderstand that we do forcible things. हम कभी किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, परंतु लोग यही सोचते हैं हम लोगों को दबाव के द्वारा उनका परिवर्तन करते हैं। We are patriotic, but people misunderstand us as anti-nationals. मेरे प्यारो, हम अपने देश को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि हम उसके विरोधी हैं। So we need to sometimes take the privilege of the privileges given to us under Constitution. मेरे प्यारो, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी अधिकार जो हमें दिए गए हैं, उसे अपनाना, उसको ग्रहण करके उसके अनुसार चलना काफी जरूरी है। And keep advancing in our ministries without any failures, trusting in God that He is with us and He will carry us through. और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए कि वो हमें आगे लेकर के चलेगा, हम प्रभु के सेवकाई में अग्रसर होते रहे। Let me share a final word and close this message. मैं फाइनल कुछ बातों को बता करके मैं इस वचन को समाप्त करना चाहता हूं। We turn back to 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2. पहला तीमुथियुस की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसके दूसरे पद में मैं आपका ध्यान को लेकर के आना चाहता हूं। Praying for our rulers and the authorities is our obligation. मेरे प्यारो, हमारे ऊपर अधिकार रखने वालों के लिए, उन राजाओं के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करना काफी जरूरी है। When we have pressures, when we have persecutions, we are not rebelling against them, but the Bible says, pray for them, for it is God who can put the wisdom and thoughts into their hearts and minds. मेरे प्यारो, हमारे जीवन में जब सतावट आती है, तो हमें उनके विरोध में आगे बढ़ना नहीं, उनके बगावत करना नहीं, परंतु उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है।
Pray that our rulers will be given the wisdom to rule in God's plan and purpose. हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उनको सुबुद्धि दे, उनको ज्ञान दे, ताकि वो देश को शांतिपूर्वक चलाने पाए। Pray that there will be peace and harmony established in the society. हम प्रार्थना करें कि समाज में शांति स्थापित होने पाए, एक अच्छा वातावरण स्थापित होने पाए। And pray for the salvation of all people, as the Bible says. और परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है, उन अधिकारियों को, उन ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो परमेश्वर के उद्धार के अनुभव को जानने पाए। Yes, we can still serve the Lord under submission to the God-ordained ordinances and authorities. मेरे प्यारों, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए उन तमाम अधिकारियों के अधीनता में रहते हुए प्रभु के काम में आगे बढ़ना काफी जरूरी है। We can still go forward boldly, for it is God who is in control. It is God who has established. मेरे प्यारों, परमेश्वर जो नियंत्रण रखता है, परमेश्वर जिनको अधिकार दिया है, उसके अधीनता में रहते हुए हमें आगे बढ़ना है। May the Lord continue to help us, that we will not be disheartened or discouraged by anything, but we will be all the more strengthened to go forward for believing that God is with us. What He has begun in us, He will bring it to completion. मेरे प्यारों, हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, लेकिन जिस कार्य को परमेश्वर ने आरंभ किया है वो उसे पूरा भी करेगा। इस विश्वास के साथ, इन विचारों के साथ ही हमें प्रभु के काम में अग्रसर होना है। Let us pray for our nation. अपने देश के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। Let us love the people of this country. हमारे देश के लोगों को प्रेम करें, अपना प्रेम प्रदर्शित करें। Let us be faithful to the work that God has entrusted to us. और जो कार्य परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसके प्रति हम विश्वास योग्य बने। All glory to God. May His name be glorified. Thank you. परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसके नाम को ऊंचा किया जाए।